पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पिछले क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि sin थीटा इज इक्वल टू 0 आप लोगों ने देख लिया था, तो दिस इज जनरल इक्वेशन हियर, मींस you can say that trigonometric equation. So this is what trigonometric equation we can say. Where is that word? वहाँ पे भी आया था ना, वो कहाँ पे आया? वो बेसिक मैथ्स है। अच्छा बेसिक मैथ्स तो एंटी वर्स होंगे ना। अच्छा देखो आपका ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। This point is clear, right? Trigonometric equation. Next part is general solution. So general solution. I think this is clear to all of you. Clear है? अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको sin थीटा इज इक्वल टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 0 का डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो आपका tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा का डिस्कस कर चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 0, if tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? कैन एक्सप्लेन मी? tan थीटा इज इक्वल टू 0, इफ यू राइट tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यू कैन राइट डाउन दिस, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको पता है, लेकिन sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा? sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये tan थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब sin थीटा क्या होगा? 0 होगा। और sin थीटा 0 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई पे। तो सेम एज इसका भी हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? I इंटीजर, पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया सबको? n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो n जो है या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज cot थीटा इज इक्वल टू 0। अगर cot थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इफ यू टॉक अबाउट cot थीटा इज इक्वल टू 0, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot थीटा will be cos थीटा अपॉन sin थीटा is equal to 0. This point is clear ना? We can say that cos थीटा is equal to 0 and cos theta 0, तो theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. So this you can say that 2n plus 1 into pi by 2. तो यहाँ से theta क्या हो जाएगा? Theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. This will be your general solution for this. So where n belongs to? I think this point is clear to all of you. Clear है सबको? ये कैसे हुआ? Cot theta क्या हो जाएगा? Cot theta. You can say that cos theta upon sin theta is equal to 0, and if the cot theta will be 0, only in that case cot theta is equal to 0 only when cos theta is equal to 0, because we know that cos theta is equal to cot theta is equal to cos theta upon sin theta. तो cot theta is equal to क्या हो जाएगा? cos theta upon sin theta, and cot theta 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर पार्ट 0 के इक्वल होगा, means cos theta is equal to 0. And I have told you earlier this point, if when cos theta is equal to 0, then in that case what would be the value of theta? Theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. So this you can say if 2n plus 1 into pi by 2 will be the theta. So this is equal to 2n plus 1 into pi by 2 when n belongs to I. n क्या है? इंटीजर है। This point is clear to you or not? Clear है सबको? Next part of this, tan theta is equal to 0, cot theta is equal to 0, theta is equal to n pi, theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to n belongs to 1. This is clear to you, no? Next part of this is sin theta is equal to 1. If you write sin theta is equal to 1, then what will be the general value for this? General equation, the general solution for this. General solution क्या हो जाएगा इनके लिए? General solution क्या होंगे? sin theta is equal to 1. तो what would be the general solution for this? देखो 1 कहाँ होगा? sin थीटा। ये आपको ध्यान देना है। Try to understand. This is minus x, this is x, this is y, this is minus x and this is minus y. ठीक है? You know about this कि 1 जो है वो यहाँ पे होता है sin थीटा, यहाँ पे हो जाता है कितना? 0, यहाँ पे कितना होता है? minus 1. तो 1 कब होगा? 1 देखो pi by 2 पे होगा। क्लियर है सबको? फिर उसके बाद दोबारा 1 कब होगा? समझ में आया ना? This point is clear to all of you or not? 1 का किस पे हो रहा है? when theta is equal to pi by 2. फिर 1 कब होगा? जब ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तब आपका हो जाएगा 1. इसका मतलब pi by 2 पे होगा। दूसरा कब होगा? +2 pi by 2. फिर pi
plus pi by 2. 2 pi plus pi by 2 will be how much? 5 pi by 2. This becomes 5 pi by 2. Clear है जी? फिर नेक्स्ट तीसरा वाला कौन सा होगा? फिर 2 pi का राउंड यहीं पे आएगा, तो ये 1 होगा। समझ में आ रहा है? We can say that कि 5 pi by 2 plus 2 pi 9 pi by 2. This point is clear to all of you or not? Clear है सबको? It means that इसके जनरल टर्म्स क्या हो जाएंगे? तो देखो pi by 2 तो सब में है, pi by 2 is contained in all this part. You can see pi by 2 सब में है, क्या नहीं है? 1 देखो 5 9 this part, तो 1 और 5 9 के लिए जनरल टर्म क्या लिखेंगे? 4n plus 1, 4n plus 1. क्लियर है? अगर नहीं आ रहा है तो सर आपने कैसे लिख दिया जनरल टर्म? आई डोंट नो अबाउट दैट सर, आई हैव नॉट द नॉलेज ऑफ दिस, आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दिस. ठीक है, आपको कि सर मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है कि हम कैसे लिखें. तो आपने एपी पढ़ा हुआ है, एपी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एन टर्म का एन क्या होता है? a प्लस एन में कम n माइनस 1 इनटू d. क्लियर है? तो यू कैन राइट डाउन a is the first term, the first term is given, a is equal to 1, common difference is equal to second term minus first term, तो 5 minus 1 will be 4, तो n क्या हो जाएगा? a plus n minus 1 into d. You can write down na? a plus n minus 1 into d, 1 plus n minus 1 into d is 4. You can see. So this becomes 1 plus 4n minus 4. This becomes 4n minus 3. समझ आया नहीं सबको? तो 4n minus 3 भी आप लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? और 4n plus 1 भी लिख सकते हो, minus 1. एक्चुअली क्या हो रहा है? What is happening here? We have to see here. ठीक है, ये हमें देखना है कि क्या हो रहा है. 4n minus 3, इसमें से आप 4n minus 1 भी लिख सकते हो. That is also right. इसलिए कि आप minus 1, it depends on the value of n कि what you are going to take the value of n. ठीक है, आप जो है कौन सी वैल्यू n की ले रहे हो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा. n की वैल्यू अगर आप 0 लोगे ये 0 हो जाएगा 4 into n और minus 3 बचेगा. अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 minus 3 1 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? क्लियर है पॉइंट? तो 4n minus 3 भी आप लिख सकते हैं. यू आर फ्री टू राइट दिस. ये भी गलत नहीं है आपका जनरल टर्म में 4n minus 3, लेकिन 4n plus भी गलत नहीं है. प्लस से भाग करते हैं कैसे? इसलिए n की वैल्यू जब 0 लोगे तो 1 आ जाएगा. 0 पे 1 आ रहा है मतलब pi by 2 आ रहा है. ये एकदम बिल्कुल. आप minus 3 भी लिख सकते हो, minus 1 भी लिख सकते हो, plus 1 भी लिख सकते हो और 4n plus 3 भी लिख सकते हो जनरल. शेष क्या होगा? क्लियर है? You are free to take, but स्टैंडर्ड क्या होगा आपका? 4n plus 1 आपको लेना. तो यहाँ से जनरल टर्म जो आ रहा है वो 4n, मतलब आपको ये समझना है कि 4n, जैसे देखो ध्यान से 1 है तो कितना का डिफरेंस हो रहा है? 4 का, तो 4n का टर्म है और प्लस 1 लिख लो यहाँ पे डायरेक्टली बना देना. तो थीटा इज इक्वल टू 4n plus 1 into what we can say 5 by 2 minus 1 भी लिख सकते हैं आप where n belongs to i. तो देखो आप 4n plus 1, n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो pi by 2, n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो this will be 5 pi by 2. I think this point is clear to all of you or not? Yes. Clear है सबको? Okay. Next part of this is sin theta is equal to minus 1. If you talk about sin theta is equal to minus 1, तो देखो sin theta minus 1 कहाँ पे है? This part पे. You can say, तो what is this? This is theta is equal to, ये कितना होगा? अब फिर ध्यान से देखो, theta is equal to, इस part को आप देखेंगे. तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे minus 1 है. ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0. sin theta की वैल्यू आपको पता है ना? This is your x and this is your y and this is your negative of x and this is your negative of y. I think this is clear to you. So this becomes what? 0, 1, 0 and minus 1. I think this point is clear. समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? देखो ये 0, 1 ये हो जाएगा 0 and minus 1. तो minus 1 कौन से वैल्यू पे है? कौन से वैल्यू पे? 272 3 pi by 2. तो 3 pi by 2 पे कितना है? minus 1 है. अगेन किस पे आएगा? 360 के बाद. अगेन देखो फिर से 360 रिवोल्यूशन हुआ तब यहाँ पे आएगा. तो 2 pi by 3 pi by 2 plus 2 pi कितना हो जाएगा? 7 pi by 2. This becomes 7 pi by 2. क्लियर है जी सबको? समझ में आ रहा है? प्लस 2 pi करते जाओगे इसमें कितना हो जाएगा? प्लस 2 pi. 7 pi हो जाएगा 11 pi by 2. 11 pi by 2.
7 पाई बाई 2। तो अब देखो पाई बाई 2 तो सब में आ रहा है, क्या हो रहा है 3 7 11, तो 3 7 11। तो अगर 4n -1 करते हैं तब ये आपका क्या आ जाएगा, 3 जब n की वैल्यू 0 लोगे तो -1, n की वैल्यू 1 लोगे तो 4 into 1 4 minus 1 3 and 2 लोगे तो 4 to 8 minus 1 7, 4n minus 1 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी 4n minus 1 into pi by 2। You can write down where n belongs to I. This point is clear to all of you, I think. Clear है ना? Next is, हाँ जी आप ऐसे देख रहे हैं, you are seeing like this कि sir what is happening here? No, there is no need to remember all this. You have to understand only the concept of what I'm discussing here with you. Okay? You have only to understand the concept of what is going on all around. When we are writing sin theta is equal to 1, तो in this case ये आपका standard form है. That you can say that कि standard form में आपको question में दिया रहेगा कि आप इस तरह से कर सकते हो. Clear है ना point? Next part of this, cos theta is equal to 1. If we talk about cos theta is equal to 1, in that case 1 किस पे होता है cos theta? ध्यान दो. This is your x and this is your y and this is your negative of x and this is your negative of y. This point is clear? तो अब देखो cos theta 1 किस पे होगा, ये आपका हो जाएगा 1 0, ये कितना हो जाएगा -1 and this becomes 1 cos, इस पे क्या होगा जी cos 3 pi by 2 पे 0 हो जाएगा, समझ में आया? तो 1 किस पे होता है 0 पे, 0 pi और किस पे होगा 2 pi पे, तो 1 किस पे होगा 0 पे होगा, एक तो 0 डिग्री होगा, दूसरा एक कंप्लीटली डबल लेंगे तो 2 pi, फिर तीसरा 4 pi पे होगा, तो नेक्स्ट पार्ट विल बी 4 pi, इसके बाद 6 pi and up to so on. तो 0 2 pi 4 pi up to so on. तो cos theta is equal to 1. तो theta is equal to हो जाएगा आपका 2n pi where n belongs to I. n belongs to I. तो theta is equal to क्या हो जाएगा आपका 2n pi where n belongs to I. n belongs to integer. I think this point is clear to all of you. Clear है सबको? Next, cos theta is equal to -1. If you talk about cos theta is equal to -1, तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखो आपका ये कितना होगा पाई बाई कि पाई बाई 2, आप कुछ बोलने वाले थे पाई बाई 2 कोई पाई, ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा पाई, फिर सेकंड में फिर 2 पाई, समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा n pi. दिस बिकम्स, अब ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये कितना था देखो पाई, ये आप जनरल लिख लो पाई था, उसके बाद फिर ये पाई के बाद फिर एक रिवोल्यूशन होगा यहाँ पे, ये पाई है ना, एक रिवोल्यूशन यहाँ पे होगा ये पूरा, तो कितना हो जाएगा समझ में आ रहा है ना? ये एक रिवोल्यूशन हो रहा है तो कितना हो रहा है 2 pi plus 1 plus pi, 2 pi plus pi will be 3 pi, so theta is equal to pi 3 pi, ठीक है? फिर से एक रिवोल्यूशन, फिर 3 pi plus 2 pi, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है जी? कौन सा नहीं समझ में आया? साइन वाला तो समझ में आया ना, ये वाला नहीं समझ में आया? अच्छा बोलना चाहिए था ना आपको, ये वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से हम लोग। देखो ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये नेगेटिव x हो जाएगा और ये नेगेटिव y हो जाएगा, ठीक है? अब ये आपका 0 डिग्री, ये तो पता है ना, ये पाई बाई 2 है, ये कितना है पाई है, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2. दिस इज क्लियर? क्लियर ना? दिस इज क्लियर और नॉट? देखो 0 डिग्री, यस डोंट टॉक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 डिग्री, फिर से समझिए, ट्राई टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट, ओके? तो 0 डिग्री पे क्या होगा आपका cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है? पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, इस पे क्या होगा पाई पे -1, इस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो -1 किस पे आ रहा है पाई पे, तो पाई पे -1 आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई पे आ रहा है -1 cos थीटा, -1 किस पे आ रहा है पाई पे, और किस पे आएगा दोबारा अगर करेंगे तो देखो, तो फिर से यहाँ पे घूम के फिर से एक बार यहाँ पे आएंगे तभी तो आएगा फिर -1, तो यहाँ तक तो पाई हुआ, कितना हम घूमे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पाई और ये प्लस पाई, 2 पाई घूमे, मतलब पहले पाई पे था फिर 2 पाई घूमे, तो पाई प्लस 2 पाई विल बी हाउ मच 3 पाई, 3 पाई हो गया,
सेम एज फिर से यहाँ से आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन पाई और यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन पाई, तो फिर से 2 पाई हम ज्यादा चले, 3 पाई प्लस 2 पाई विल बी 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, 3 है और 5 है, तो 1 3 5 होगा, तो क्या हो जाएगा जी 1 3 5 1 3 5, तो 2n प्लस 1 into 5, क्लियर है, where n belongs to integer। ऐसे आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए जल्दी से। tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1 and tan theta is equal to cot theta is equal to 1 -1, cot theta is equal to -1, tan theta is equal to 1, if you write tan theta is equal to 1 तो sin theta is equal to 1 जो होगा वही होगा आपका, tan theta is equal to 1, इसका कैसे लिखेंगे बताइए, यस, तो tan theta is equal to 1, इसको लिख पाएंगे क्या, तो 1 किस पे होगा tan थीटा, तो आप देखो यहाँ पे tan थीटा पाई बाय 4 पे 1 होगा, और किस पे होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, कितना पाई, तो पाई प्लस पाई बाय 4, एक होगा आपका पाई बाय 4 पे, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा, समझ में आ रहा है, पाई, तो पाई प्लस पाई बाय 4 मींस पाई बाय 4 को, पाई है ना, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस फिर उसमें पाई ऐड करोगे तो 9 पाई बाय 4, उसको क्या लिखेंगे 159 है, तो 159 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, समझ में आया, इसमें क्या था पाई बाय 2 था, ध्यान रहे, उसमें क्या है पाई बाय 4 है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है सबको, 159 तो 159 आपको बताया था 159 होगा तो 4n प्लस 1 उसके लिए यूज करेंगे, तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। अब इसको ध्यान से आप देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, सी हियर केयरफुली, अगर इसको आप सेपरेट करते हैं ना, सेपरेट, तो व्हाट विल बी दिस पार्ट, सेपरेट अगर करेंगे पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, और ये एक्चुअल में आपका जनरल वैल्यू है, जब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan 45, tan पाई बाय 4 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, होता है ना, n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, इसलिए 4n प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाता है, समझ में आया, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं जनरेटर, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बोलेंगे, ये समझ में आया ना सबको, तो आगे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, सबके एंड हम आपको फाइंड आउट करनी है, यस डू इट फास्ट, क्या करेंगे जल्दी बोलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, cos 3x is equal to 0, it is given, you know cos theta is equal to 0 कब होता है, theta is equal to 0 होता है 9, cos theta is equal to 0, समझिए यहाँ पे ध्यान से, cot theta is equal to 0 कब होता है, theta is equal to what we can write down 2n plus 1 into pi by 2, इसका जनरल टर्म यही हो जाएगा ना, समझ में आया, where n belongs to I, where n belongs to integer, क्लियर है सबको जी, तो what we can say, theta के जगह पे यहाँ पे क्या है 3x है, 3x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, I think this point is clear, where n belongs to I, तो थीटा की x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is equal to 2n plus 1 into 3 को आप राइट हैंड साइड में लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, you will write down 2n plus 1 into pi by 6, 3 into 2 will be 6, this becomes the general term for this equation, x is equal to 2n plus 1 into pi by 6 and where n belongs to I is the general term for this equation, cos 3x is equal to 0, this point is clear na? Next question number 2, question number 2 say here, question number 2 see here, sin 2x is equal to 1, so sin 2x is equal to 1, if you talk about sin 2x is equal to 1 then what we can say, sin 2x is equal to 1, इधर बात करें ये क्या हो जाएगा जी, तो अब sin थीटा 1 कब होता है, sin थीटा is equal to 1, तो आपको बताया था थीटा is equal to क्या हो जाएगा, थीटा is equal to 4n plus 1 into pi by 2, this you can write down where n belongs to I, so this you can write down sin 2x, so 2x is equal to what, 4n plus 1 into pi by 2, you can write down this,
where n belongs to I. This point is clear to you or not? What about x? X is equal to 4n plus 1 into pi by 4. So this you can write down when n belongs to I, n belongs to integer. Clear है point? सबको समझ में आ रहा है? Third number question. Third number question is what? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना. Next is tan 2x is equal to 0. तो tan 2x is equal to 0 बताया था आपका इसका जनरल सॉल्यूशन. एंड आपको दिया हुआ है कि पाई x की वैल्यू माइनस पाई से 2 पाई के बीच में. It is given that the value of x lies between minus pi to 2 pi. This point is clear to you? Okay, tan 2x is equal to 0. But sin x is equal to 0 होना चाहिए. Sin 2x is equal to 0 means 2x is equal to n pi. We can write down 2x is equal to n pi. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? When n belongs to integer. Clear point? x is equal to n into pi by 2 versus n belongs to integer. Clear है? Which you can write down. X is equal to n pi by 2 versus n belongs to integer. This you can write down. This is the general term for this equation. Happens to this part का आपका यहाँ पे equation है trigonometric equation. Try to understand here trigonometric. एक को हम 1 पर पावर 67 लिख सकते हैं. And यहाँ पे आपका हो जाएगा general solution. If you talk about sin theta is equal to sin alpha. Sin alpha. अल्फा मतलब जैसे कि कोई वैल्यू आपको दी जाएगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा के टर्म में. What we can say about theta? Theta is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into alpha where n belongs to integer. क्लियर है पॉइंट सबको? अब ये कैसे आता है सर आप पूछेंगे. हाँ आपका हक भी बनता है पूछने का कि सर कैसे आया. ओके तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस पार्ट. ये सर कैसे आया थीटा इज इक्वल टू समथिंग. तो ये आप एक्चुअल में क्या करेंगे कि sin अल्फा को ट्रांसफर कर देंगे एलिसिस में लेफ्ट हैंड साइड में. तो ट्रांसफर द sin अल्फा इनटू एलिसिस लेफ्ट हैंड साइड. तो दिस बिकम्स sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ sin c माइनस sin d here. क्लियर है? तो sin c माइनस sin d अप्लाई करोगे तो वहां से 2 आएंगे आपके. 2 sin मींस जो भी पार्ट है आपका 2 sin into थीटा प्लस अल्फा बाय 2. तो वहां से आप जो है फिर जनरल इक्वेशन आप ये फाइंड आउट करोगे. दोनों का कॉमन ये हो जाएगा. ठीक है बट देयर इज नॉट any requirement of doing the proof of this formula. ठीक है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कि इसका आपको क्या प्रूफ चाहिए. दिस पॉइंट इज क्लियर ना. ओके नेक्स्ट इज ये आपका फर्स्ट हो गया. सेम एज अगर if you talk about cos theta is equal to cos alpha, if this is written then what we can say theta is equal to 2n pi plus minus alpha when n belongs to I. This point is clear na. Third number is what? Third number we can say that tan theta is equal to tan alpha and tan theta is equal to tan alpha क्या हो जाएगा. What we can say tan theta is equal to tan alpha तो theta is equal to n pi plus alpha when n belongs to I. This point is clear or not? सबको समझ में आ रहा है? n pi plus alpha. Yes. Same as you can see that for the fourth. अब देखो sin का जैसे वैसे ही cosec का भी होता है. तो cosec का आपको अलग से नहीं याद रखना है. cosec theta is equal to cosec alpha. क्लियर है जी? cosec theta is equal to cosec alpha. तो theta is equal to what we can say n pi plus minus 1 की पावर n into alpha. n belongs to integer. ठीक है? Same as fifth number बोल सकते हो sec theta is equal to sec alpha. If this is given, तो theta is equal to 2n pi plus minus alpha when n belongs to I. ठीक है? Next is sixth number. तो ये आपका हो जाएगा tan theta. तो हो गया ये cot theta हो जाएगा. cot theta is equal to cot alpha and this becomes theta is equal to n pi plus alpha when n belongs to I. This will be your general solution for respective 6 trigonometric ratios. The sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha, cosec theta is equal to cosec alpha, sec theta is equal to sec alpha, and cot theta is equal to cot alpha. So what you need to do, you have to analyze only 3 part of this. That is sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, and tan theta is equal to tan alpha. And the remaining part will be as it is like the sin alpha. The cosec theta is equal to cosec alpha will be like as sin theta is equal to sin alpha. उसका भी सेम होगा. sec theta is equal to sec alpha का इसके जैसा होगा जैसे cos का वैसे sec का उसका रेसिप्रोकल का हो जाएगा. उसी तरह से cot का हो जाएगा. क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट? ओके क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर. Yes, do the question.
समझ में आया ना किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का? ओके अपना आज वो नहीं तो उसको डाउट होता जरूर। यस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज sin 2x is equal to minus 1 by 2. Second number is 2 cos theta by 3 is equal to root 3. Third number is given is tan 3x is equal to 1 by 4. क्लियर है जी? सब लोग फाइंड आउट करेंगे इसको। sin 4x ये तो सेम हो जाएगा इसी तरह से, अलग अलग वैरायटीज का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट नंबर इज tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 984 में हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? तो sin 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो कैसे करेंगे इसको? 2x equals तो दिस बिकम्स, ऐसे लिख सकते हो ना, sin 2x equals इज इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा? ये 1/2 है तो 30 डिग्री का, तो sin माइनस संख्या 4a3 से -30 पाई बाई 6, इसको लिख सकते हो ये -6 sin माइनस पाई बाई 6। समझ में आया सबको? अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है माइनस पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू क्या है? 2x है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। क्लियर है ना? यहाँ से 2x इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाई 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? और पाई अपॉन 12, ये वेयर n बिलोंग्स टू i। दिस विल बी योर सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ x हो जाएगा ना, ये x इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 1 की पावर n, तो ये माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई, और ये 6 अपॉन में 2 आएगा तो 6 टू द 12। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? डाउट? आपको कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस देखो, 2 cos थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू रूट 3, कर लोगे नहीं? ये तो इजी है। 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे, इट वुड बी रूट 3 बाई 2, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos थीटा बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन रूट 3 बाई 2। रूट 3 बाई 2 कितना होता है? डायरेक्टली लिख देना, रूट 3 बाई 2 इज cos पाई बाई 6। समझ में आ रहा है सबको? cos पाई बाई 6, 2 को ट्रांसफर करोगे RHS में तो रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। रूट 3 बाई 2 कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 6, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग। तो थीटा बाई, अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज पाई बाई 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 6n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू i इंटीजर। तो दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन 2 cos थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू रूट 3। क्लियर है सबको? यस सर। यस, तो थीटा की वैल्यू आपकी याद आएगी 6n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू i। नेक्स्ट, tan 3x इज इक्वल टू 1 by 4। तो tan 3x is equal to 1 by 4। यस, कैसे करेंगे इसको? इसमें सर 4 को ले लेंगे, tan 3x से हो सकता है क्या? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। tan 3x, थर्ड नंबर क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। tan 3x is equal to 1 by 4। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू tan अल्फा, ये tan अल्फा गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? tan अल्फा इज इक्वल टू 1 by 4, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 by 4। यू कैन राइट डाउन दिस ना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 by 4। दिस इज क्लियर? तो tan 3x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स ऑफ 1 by 4, तो वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू n into pi by 3
प्लस ये कितना हो जाएगा tan inverse 1/3 into tan inverse of 1/4 where n belongs to I integer. So this you can write down. Yes. सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? यस, कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है जी। tan थीटा इज इक्वल टू -√3 -√3 कब होगा? tan माइनस पाई बाय 3, तो tan माइनस पाई बाय 3 क्या होगा? -√3 हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, अल्फा की वैल्यू है माइनस पाई बाय 3, दिस बिकम्स n पाई माइनस पाई बाय 3। क्लियर है सबको? n बिलोंग्स टू i। अब प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके किसके बीच में होते हैं? 0 से 2 पाई के बीच में। क्लियर है पॉइंट? 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में आपका हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई के बीच में थीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी? n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो -π/3 होगा। -π/3 0 से 2 पाई के बीच में नहीं आता है। n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो π - π/3 विल बी 2π/3। क्लियर है सबको? 2π/3 और क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3π - π/3 तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए आप 2 पाई करेंगे तो 3π माइनस π/3 ज्यादा हो रहा है 2π से, 5/3 तो कितना हो रहा है? अब देखिए nπ माइनस π/3, तो दिस बिकम्स n की वैल्यू आपने कितनी पुट की? 2, तो 2 मतलब 6, 5π/3 5π/3 तो कहाँ ज्यादा हो रहा है? 2π से। तो 5π/3 भी ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए 3 2 का 6 होगा ना। अगर 2π होता तो मतलब 6π से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यस, आ रहा है ना? हाँ, तो 3 से अगर कैंसिल होगा तो 6π होगा, तब तो 2π होगा ना। 2π से छोटा चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 6π से बड़ा होना चाहिए था, तभी तो ये 2π से बड़ा होता, लेकिन ये 6π से कम है, तो 2π से छोटा है इसका मतलब। दिस बिकम्स 5π/3, तो दो वैल्यूज आएंगी थीटा की, 2π/3 एज वेल एज 5π/3। n की वैल्यू 0 भी रखनी है। यस, यू कैन टेक, बट n की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे ना तो -π/3 आएगा, और -π/3 0 से 2π के बीच में लाई करता है? नहीं लाई करता है। क्लियर है ना सबको? यस, यू आर क्लियर विद दिस? कोई डाउट? आप बोल रहे थे कुछ n के बारे में। n की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं? इसलिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है। एंड आई टोल्ड यू कि अर्लियर इन माय क्लासेस की जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका? 0 से 2 पाई के बीच में होगा, एक इंटरवल हो गया, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज होंगी वही आपके क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे उस इक्वेशन के। तो देखो अब n की वैल्यू वहां पे पुट करते जाएंगे, n की वैल्यू इंटीजर होगी। इंटीजर मतलब क्या? पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर और 0। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर मींस 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेगेटिव मतलब 0 आपका ना पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होता है, नहीं नेगेटिव होता है। तो 0 आपका क्या है एक तरह से? न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन होता है, साइंस में पढ़ते हैं। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आपका नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये इंटीजर हो गया 0 आपका, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -1 ले सकते हैं। लेकिन देखो n की जब वैल्यू 0 ले रहे हैं तो -π/3 आ रहा है, और -π/3 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। होता है वो? नहीं होता है। तो -π/3 does not lie between 0 to 2 पाई। 0 से 2, ये तो इसलिए कि पॉजिटिव इंटरवल में है, तो पॉजिटिव वैल्यू में आनी चाहिए। आपका बाय डिफॉल्ट होना चाहिए माइंड में कि पॉजिटिव हम इंटरवल ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ये -π/3 आ रहा है, तो कभी आएगा ही नहीं पॉजिटिव इंटरवल में। अगर n की वैल्यू -1 भी लेते हैं तो -π - π/3 तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा, बट माय इंटरवल इज फॉर पॉजिटिव हियर, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्लियर है ना सबको? यस, कोई डाउट? आपको कोई डाउट? हाँ, चैप्टर बस एक और जो है वे है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, ज्यादा बात नहीं है। यस, चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे ना। देखो चैप्टर खत्म करना बात नहीं है, मेन देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आप कितना समझते हैं और कितना सॉल्व करते हैं। हम तो आपको 10 दिन में पूरा मैथ्स खत्म करा दें, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच यू आर ग्रास्पिंग फ्रॉम दैट and how much you are able to solve any question if this question is coming before you। ठीक है, कि वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप कौन से क्वेश्चन को कितना सॉल्व करने में सक्षम है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है पॉइंट?
खत्म करने पे और खत्म नहीं करने पे उस पर नहीं डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो नहीं छूटने चाहिए। कहा जाता है ना कि इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक इंस्टेड ऑफ 100 बुक्स। तो 100 बुक से को बार मतलब 100 बुक्स को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें। ठीक है, एक ही बुक को आप 100 बार पढ़ें। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट है, देखिए समझ में आ रहा है ना सबको ये। तो ये बेटर है कि आपको समझ में कितना आ रहा है और कितना आप गेस कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पे। यस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट है और ये है आपका जनरल। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसमें यू हैव टू राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्लियर है? तो अब इसमें आपका साइन स्क्वायर में आएगा। यू कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इफ दिस इज गिवन। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका दिया हुआ है। तो व्हाट वी कैन से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा है आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। क्लियर है? सेकंड नंबर पॉइंट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? तो n के बारे में तो आपको पता ही है कि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो 0 1 पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर और 0 you can say are called integers. So next point of this is third number. Third आपका क्या है? tan square theta is equal to tan square alpha. We can say तो theta is equal to what we can say n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Same as you can write down for sec square theta is equal to sec square alpha, cosec square theta is equal to cosec square alpha as well as cot square theta is equal to cot square alpha. तो लिख लीजिए इसको। Fourth number is cosec square theta is equal to cosec square alpha, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें सबके लिए सेम होता है। यस, सबके लिए सेम होता है। यस, इन द केस ऑफ स्क्वायर सबके लिए सेम होता है। फिफ्थ नंबर इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा, वेयर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू। तो एक्चुअल में इसमें तीन ही जो है उसका यूज होता है। आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर, इन सब का यूज नहीं होता है स्क्वायर में ज्यादा। क्वेश्चन इसी से आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बस मैक्सिमम। बाकी ये सब पार्ट तो ऐसे ही आपको लिखा रहेंगे, हां एक फॉर्मेलिटी की फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो 5 इज व्हाट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा। दिस यू कैन से थीटा इज इक्वल टू n पाई plus minus alpha. This is clear to you ना? तो first number question I am writing here, sin square theta is equal to 3/4. इसके जनरल सॉल्यूशन आपको बताने हैं 2 थीटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन sin square theta is equal to 3/4, इसके जनरल सॉल्यूशन आपको बताने हैं। नेक्स्ट इज tan square theta is equal to 1/3, इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे सब लोग बताएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? sin स्क्वायर थीटा सॉल्व करेंगे इसको। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे? √3/2 का होल स्क्वायर इज गिवन। 3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है? √3/2 इज व्हाट वी कैन से sin 60 मींस sin π/3, sin π/3 मींस sin स्क्वायर π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/3। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/3, n पाई प्लस माइनस π/3। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसको कैसे करेंगे? तो दिस बिकम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 आपको लिखा हुआ है, तो दिस यू कैन राइट डाउन 1/√3 का होल स्क्वायर विल बी 1/3 एंड 1/√3 किसका होता है? tan, you can say that tan 30 degree, tan 30 degree means tan π/6 का होल स्क्वायर। It means that we can say that tan square theta is equal to tan square π/6 it is given। तो tan square π/6 means अल्फा की वैल्यू π/6 है, तो what we can say theta is equal to n pi plus minus alpha। n pi plus minus alpha means अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/6।
n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. दिस यू कैन राइट डाउन. So this is the value of theta and this is the general solution. Yes. n की मान इसलिए कि जनरल टर्म पूछ रहा है ना, जनरल सॉल्यूशन बताया था ना. जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, n होगा. शुरू में ही तो बताया है स्टार्ट करने से पहले. जनरल सॉल्यूशन इसका पूछ रहा है सबका. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. पर्टिकुलर नहीं पूछा जा रहा है. पर्टिकुलर में क्या होगा जी, पर्टिकुलर में हम n की वैल्यू पुट करेंगे. अगर जैसे इंटरवल दे दिया 0 से 3 5, ठीक है, ये सब इंटरवल दे दिया, तो उसमें आपको पुट करना हो ये वैल्यू. समझ में आया सबको? अच्छा, माइनस पाई से 2 पाई के बीच में इंटरवल दिए थे ना क्लास वाला, तो वो किया आप लोग पर्टिकुलर. माइनस पाई से इंटरवल भी तो था ना, उसमें निकालना था वो. तो अभी क्वेश्चन जो दिए हैं आपको दिए हैं ना अभी, हो गया ना, n की वैल्यू रख के आपकी 0 रखी थी क्योंकि माइनस में इंटरवल दिया नहीं था. नहीं, उसके पहले था tan 3x = 0 और ये माइनस पाई से 2 पाई के बीच में था. माइनस पाई ये क्वेश्चन था ना, tan 3x = 0. आप लोग नहीं बनाए फिर से, बोले ना कि बना रहे, वो कर लेना. tan 3x = 0, ठीक है. इसमें x की वैल्यू थी आपको पाई से 2 पाई. याद करो फर्स्ट में थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस लिखे थे उसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन यही था ना स्टार्टिंग में. ध्यान दीजिए, tan 3x = 0, x की वैल्यू कहां से कहां तक थी, माइनस पाई से 2 पाई तक थी. अभी लिखा है ना आप लोगों ने. यस, अभी लिखा है ना. लिखा था एक माइनस पाई ये किया था आपने. पूरा नहीं लिखे हैं, ये याद क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है. वाला तो नहीं लिखा था. tan 2x = 0, tan x 0 तभी होगा सर, sin 0 होगा. tan x 0 तभी होगा, sin 0 होगा सर. उसकी वो नहीं हम बोल रहे हैं. tan 2x = 0 लास्ट है, अरे माइनस पाई से 2 पाई के बीच में. ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन सर. tan 2x = 0, ठीक है. तो tan 2x = 0 था, ठीक है. माइनस पाई से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी होगी ना, x की वैल्यू माइनस पाई से 2 पाई के बीच में. जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 2x = बताया n पाई, ठीक है. तो x = n × π/2, ये तो आपका हो गया था, n बिलोंग्स टू इंटीजर. लेकिन अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या मांग रहा है, माइनस पाई से 2 पाई के बीच में मांग रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करेंगे. अब समझ में आया, n की वैल्यू आप माइनस पे पुट कर सकते हो. तो माइनस से अब पुट करते हैं. देखो पहले 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, n की वैल्यू 0 भी हो जाएगी. n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2. पहले पॉजिटिव वाला करते हैं, पहले 0 पुट किया तो ये हो जाएगा n, x की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्लियर है सबको? x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 × π/2 दैट इज इक्वल टू 0. फिर x की वैल्यू 1 पुट किया, n की वैल्यू तो 1 × π/2, ये π/2 हो जाएगा. x की वैल्यू जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 × π/2 दैट इज इक्वल टू पाई, तो ये पाई हो जाएगा. क्लियर है सबको जी? n की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो 3π/2, 3π/2 भी जो है 2 पाई के बीच में आएगा, इसलिए 2 2 4 होना चाहिए, 2 पाई से ज्यादा होने के लिए. समझ में आ रहा है? अब देखो अगर 4 हम करेंगे, 4 करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा. और 2 पाई पे क्लोज है क्या ओपन है, क्लोज नहीं है ना, ओपन है, तो 2 पाई नहीं आएगा इसलिए, ठीक है. तो 3π/2 तक आएगा. अब देखो नेक्स्ट माइनस में वैल्यू पुट करते जाओ, माइनस में, नेगेटिव में, माइनस में, तो -1, तो -1 पुट करेंगे तो दिस बिकम्स -π/2. क्लियर है जी सबको? फिर n की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -π पे देखो क्लोज नहीं है, -π भी नहीं होगा, तो -π/2, 0, π/2, π एंड 3π/2. तो ये इसके x की वैल्यूज होगी ये जो -π से 2 पाई के बीच में होगी. क्लियर है? तो ये x की वैल्यूज आपको, तो ये अपने से आपको फाइंड आउट करना था ना कि x की वैल्यू -2 पाई, -π से 2 पाई के बीच में इंटरवल दिया हुआ. समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. मॉड ऑफ cos x इक्वल टू, हाँ जी बताइए कैसे करेंगे. इजी है ना? यस सर. क्या हो गया? ठीक है, इजी है. जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है. तो देखो क्या करेंगे, व्हाट विल डू is sin 2x minus sin 4x, this is given. तो sin c minus sin d का फॉर्मूला लगाएंगे. तो sin c minus sin d क्या होता है जी, 2 ×
cos c plus d by 2 तो cos 4x plus 2x 4x plus 2x 6x 6x upon 2 will be 3x। समझ में आ रहा है ना सबको? डायरेक्टली कर सकते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है ना। यस और नो यस तो ये हो जाएगा 2 into cos c plus d by 2 sin c minus sin d लिख देते हैं आपको। sin c minus sin d का फॉर्मूला आपका हो जाता है 2 into cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। this you can write down। क्लियर है सबको जी? 2 into cos c plus d by 2 2x plus 4x that is equal to 3x and into sin c minus d by 2 तो क्या हो जाएगा 2x minus 4x तो minus 2x this you can write down is equal to 0। सबको क्लियर है? 2x minus और upon 2 हो जाएगा कि ये minus of x हो जाएगा तो sin minus of x is equal to 0। तब देखो sin of minus theta minus sin theta तो minus जो इसमें से बाहर ला दोगे this becomes cos 3x और ये हो जाएगा माइनस sin of minus theta minus sin theta तो minus 2 cos 3x into sin x is equal to 0। this is clear or not? क्लियर है सबको? तो व्हाट यू विल डू cos 3x से आप कॉमन ले लो तो cos 3x कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 minus 2 sin x is equal to 0। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं और 2 फैक्टर्स होते हैं तो उस केस में क्या करते हैं इधर 1 factor is equal to 0 और second factor is equal to 0। तो इसमें क्या लिखेंगे इधर cos 3x is equal to 0 और 1 minus 2 sin x is equal to 0। this point is clear or not? सबको समझ में आया? तो cos 3x is equal to 0 आपको बता चुके हैं cos 3x is equal to 0 तो cos 3x is equal to क्या लिख सकते हैं 3x is equal to what we can write down बताओ सब 2n plus 1 into pi by 2 लिख सकते हैं ना 3x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 you can write down the general term for this x is equal to क्या हो जाएगा x is equal to 2n plus 1 into pi by 3 where n belongs to I n belongs to integer तो ये आपका हो जाएगा 3x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 x is equal to शिफ्ट करो 3 को राइट हैंड साइड में तो this becomes 2n plus 1 into pi by 6 हो जाएगा this becomes pi by 6 3 into 2 will be 6 ये हो जाएगा x is equal to 2n plus 1 into pi by 6 where n belongs to any integer जहाँ पे n क्या होगा कोई integer हो जाएगा next part of this is 1 minus 2 sin x is equal to 0 if you are writing 1 minus 2 sin x is equal to 0 in that case what is the value of sin x तो sin x is equal to 1 by 2 you can say that कि 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है sin pi by 6 की तो sin x is equal to sin pi by 6 तो x is equal to क्या हो जाएगा n pi plus minus 1 की पावर n into alpha alpha की वैल्यू क्या हो जाएगी pi by 6 this point is clear to all of you or not and where n belongs to integer अब देखो इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना है वही तो इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो कंबाइंड सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे Can you explain me this point? Combine कैसे लिखेंगे जी? समझ में आया ना? x x है तो फिर इसकी combine कैसे लिखेंगे? प्लस कर देंगे नहीं इसको कोई कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे आप? इक्वेट कर देंगे यस इसको आप लिख लो m इक्वेशन बनाने वाला है इसको आप लिख लो m pi दिस यू कैन राइट m pi इसको इक्वेट कर दो और वहां से जो है m और n में रिलेशन आ जाएगा ठीक है m और n में रिलेशन आ जाएगा तो m और n की वैल्यू आप उसके अकॉर्डिंग रख देना ठीक है ना समझ में आ रहा है सबको m की वैल्यू n के टर्म में रख देंगे तो वो आपका जो है कंबाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों को इक्वेट करेंगे तब अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो एनालाइज कर सकते हैं कैसे एनालाइज करेंगे बताइए तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 0 पहले पुट करेंगे आप तो दिस बिकम्स पाई बाय 6 हो जाएगा n की वैल्यू m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये भी पाई बाय 6 होगा यस सर समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा किस में आ रहा है एक्स्ट्रा किस में आ रहा है वो आपको चेक करना होगा एक्स्ट्रा जिसमें आ रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x एक दो हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और जिसमें एक्स्ट्रा आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे ठीक है वही जो है आपका और या उन दोनों में से जो कॉमन होगा उस पे हम जनरल टर्म बना देंगे ऐसा कर सकते हैं इक्वेट करने में इतना हम सॉल्व करने लगो उससे ज्यादा अच्छा है ना कि दोनों के वैल्यूज हम चेक कर लें किस कौन से वैल्यूज इक्वल हो रहे हैं दोनों के उस पे हम जनरल टर्म डिफाइन कर देंगे समझ में आ रहा है या हम उसी n की वैल्यूज पुट करके ऑप्शन में देख लेंगे कौन वो कॉमन वैल्यूज को दे रहे हैं ऑप्शंस एंगल्स में आएंगे ऑप्शंस आपको n के टर्म में नहीं आएंगे ऑप्शंस भी n के टर्म में आएंगे तो आपको क्या करना है दोनों का कॉमन दो तीन कॉमन चेक कर लेना ठीक है और दो तीन को देख लेना n की वैल्यू किसी भी ऑप्शन में पुट करके और आप देख लेना कि दो तीन वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही अगर वो आएगी तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगर वो नहीं आएंगी
दो तीन वैल्यूज, तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसलिए एक ही में आपका ऐसा होगा कि दो तीन, हाँ एक पे हो सकता है ऐसा, एक वैल्यूज पे आपका ऐसा हो सकता है ऑप्शन में कि दो ऑप्शन सेम हो। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगर आप दो तीन वैल्यू लोगे तो दो ऑप्शन सेम नहीं होंगे, फिर सभी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे देखो, n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 यहाँ पर भी आया और x की वैल्यू π/6 यहाँ पर भी आया। क्लियर है? n की वैल्यू सब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1 और +1, 3 π/6 मींस π/2, तो ये π/2 आएगा। क्लियर है सबको? यहाँ पे जब n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, π और ये प्लस -1 की पावर 1 तो माइनस हो जाएगा π - π/6, ये क्या आ जाएगा 5 π/6। क्लियर है आपको? 5 π/6 समझ में आ रहा है? अब उसके बाद n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3 जब आप पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा 6 + 1 7 π/6। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्या आ रहा है 3 पाई माइनस नहीं 2 पुट किए हैं ना, पहले 2 पुट करना होगा, 2 * 4 5 π/6 5 π/6 2 पुट करेंगे ना, पहले ये 0 पुट किए उसके बाद 1 उसके बाद 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 और 4 + 1 5 π/6। क्लियर है? यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस π/6, तो देखो 2 पाई प्लस π/6 कितना हो जाएगा 13 π/6। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब देखो π/6 हो गया, π/2 और ये π/6। अब नेक्स्ट अगर 3 पुट करते हैं तो इसमें आ जाएगा 7 π/6। तो देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, व्हाट इज कॉमन इन दिस? देखो कॉमन ये आ रहा है π/6 5 π/6 कॉमन आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या आ रहा है कॉमन π/6 5 π/6। जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे जी, π/6 तो सब में आएगा, इसका मतलब तो π/6 तो जनरल सॉल्यूशन में हो जाएगा। क्लियर है सबको? x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो 1 है और 5 है तो 1 और 5 डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4n + 1 × π/6, तो 4n + 1 × π/6 where n belongs to integer। क्लियर है सबको? तो ये आप लिख सकते हो। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आपको कोई डाउट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 2, sin 2x + cos 2x + sin x + cos x + 1 = 0। इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस पॉइंट? क्या हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, वही देख रहे हैं आप लोग हैं, यू आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। सर टाइम ज्यादा हो गया, इसमें क्या था ना कि थोड़ा सा वो मेरा भी पढ़ने का था, दैट्स व्हाई देयर वाज सो मच रीजंस की वो जगना फिर सो नहीं पाते, स्लीपी। अगर आप अच्छे से स्लीप लेके आते तो माइंड 100% वर्क करेगा, फिर एफिशिएंसी आपकी पता है 100% आती है। देखो sin 2x + cos 2x + sin x + cos x + 1 = 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो sin c + sin d का, तो क्या करेंगे, कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व एक बार ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। और नेक्स्ट लास्ट है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर तो घर से बना के लाएंगे ना आप लोग। हाँ जी, हो गया ना सॉल्व। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, 1 प्लस यहाँ पे 1 भी है, 1 को भी इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है ना, 1 को इंक्लूड करना है। और देखो sin x + cos x, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है sin x + cos x। कैसे करेंगे इसको, यस, तो 1 + sin x, 1 + sin x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin x, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कीजिए आप लोग इसको सॉल्व। दो इसमें इक्वेशन, इसमें भी दो इक्वेशन आएंगे, इसमें भी दो इक्वेशन आएंगे। यस, आपको 1 + sin 2x को एक साथ लेना है, cos 2x को अलग करना है, sin x और प्लस cos x को एक साथ लेना है। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस होगा।
बता दिए हम आपको 1 प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा इसका सीक्वेंस। देखो 1 प्लस साइन 2x बताए थे ना आपको एक फॉर्मूला, याद रखो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको बताए थे ना। क्लियर है सबको। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा आपका साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको। प्लस कॉस 2x क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर है। प्लस अब देखो साइन x प्लस कॉस x को एज इट इज लिख दो, साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तीनों में से कॉमन हम लेंगे साइन x प्लस कॉस x। क्लियर है सबको। तो विल टेक कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्री, इन सब में से लेंगे हम। तो साइन x प्लस कॉस x कॉमन ले लिए, दिस बिकम्स साइन x प्लस cos x, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, एंड ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको। तो देखो माइनस साइन x एंड प्लस साइन x विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस cos x। तो साइन x प्लस cos x इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कर लेंगे ना इसको, तो अच्छा हाँ प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो साइन x इज इक्वल टू cos x आ जाएगा, इधर वी कैन से दैट इधर साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन x इज इक्वल टू माइनस cos x, और यू कैन से कि 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है सबको। तो sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा देखो sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, ये हो जाएगा tan x, इसको इधर लाओगे तो tan x, तो tan x इज इक्वल टू माइनस 1, समझ में आ रहा है। और tan x माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 किसका होता है माइनस π/4 का, तो tan माइनस π/4 ऐसे लिख दो आप। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस ऑफ माइनस π/4, तो ये हो जाएगा आपका n पाई माइनस π/4 where n belongs to I। क्लियर है सबको। तो इसका जनरल टर्म ये हो जाएगा, समझ में आया ना। अगर आपको ऐसे केवल दिया है सपोज एक क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं कि sin x इज इक्वल टू cos x, और इसका पूछ ले कि जनरल टर्म क्या होगा, तो क्या होगा इसका जनरल टर्म। तो इसको क्या करेंगे हम लोग cos x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, तो tan x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा tan π/4। तो वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 और n बिलोंग्स टू I। तो ये इसका जनरल टर्म होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है sin x इज इक्वल टू cos x, इसका जनरल टर्म क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, तो sin x अपॉन cos x विल बी tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1 किसका होता है tan π/4, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 where n belongs to इंटीजर। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखो अब इसकी वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4। उसी तरह से cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 किसका होगा जी वैल्यू, तो किसमें हो जाएगा। आप कहोगे सर माइनस ऑफ, ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो है देयर आर वेरियस स्टूडेंट की हु यूज्ड टू राइट सर माइनस 1/2 है, तो 1/2 किस पे होता है cos 60 डिग्री पे, तो cos ऑफ माइनस π/6 पे वो ऐसे करते हैं। देखो cos ऑफ वो क्या करते हैं, आपको गलती बता रहे हैं कहाँ गलती होती है स्टूडेंट से। cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये आपको लिखा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, तो सर माइनस 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे कि cos x इज इक्वल टू, सर इसको हम क्या मान सकते हैं cos ऑफ, जैसे हम साइन में ले रहे थे, तो cos ऑफ माइनस क्या लेंगे π/3 माइनस 60, समझ में आ रहा है। तो cos ऑफ माइनस π/3, तो सर ये हो जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला बैठा देंगे, और x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा हो गया। तो वहीं से हो गया, तो वो गलत हो गया। ठीक है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, हो गया सो x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा, लेकिन यू have to make sure that कि this cos minus π/3 lies in what, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, and you can say that कि in the fourth quadrant the value of cos theta will always be positive। then how can you say that कि cos theta is equal to, मतलब cos minus π/3 is equal to minus 1/2, it is not possible।
कि cos माइनस पाई बाई 3 आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 होगी। समझ में आ रहा है? यस सर 1/2 होगी, माइनस 1/2 नहीं होगी, तो ये आप गलत ले रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको क्या लिखना है? व्हाट यू नीड टू राइट देयर। What do you need to write there? Yes. तो क्या लिखेंगे आप इसके बदले में? बताइए। cos x इज इक्वल टू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसे? माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं पाई बाई 6 पे क्या पाई बाई 3 पे 1/2 होता है पाई बाई 3 पे, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कर दो, तो पाई माइनस पाई बाई 3 विल बी हाउ मच 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। ये आपका इक्वेशन है। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई 3। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। क्लियर है? अभी इन दोनों में देख लो कि कौन सा जो है कॉमन है और इसके बेसिस पे आपको जनरल इक्वेशन बनाने हैं, जिससे पिछले में बताया थे ना। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत इजी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे? घर से करना है, कर लीजिए, घर से करके लाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, तो आप ये भी कर लेना फिर घर से। 4th नंबर यू कैन आल्सो डू। तो 4th नंबर कर लेंगे ना? ठीक है, इसको कैसे करेंगे बताइए? घर से करेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, सोच के आना, कोई बात नहीं। अब मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू, ये भी दोनों डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, याद दिलाना, वैसे याद रहेगा। मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2 और वो पॉइंट। ठीक है ना, यू हैव टू डू बाय योर ओन। ठीक है, अपने से करना।